Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is a revision lecture for nuclear physics basically, or we call it modern physics part 2, and this is for basically NEET students. And this chapter also like quite important. Modern physics, like it has quite a lot of weightage in exams, and we will see some questions from like previous or past year NEET or medical exams, so you will have some idea about that what type of exactly and how difficult and how easy questions are asked from this chapter. And let me try to explain you the concept which are like very important and in very short like concise manner. So here this chapter nuclear physics, basically it's more about study of nucleus. And nucleus, it was discovered by Rutherford, because like after discovery of electron, is it experiment were performed. So Rutherford did like Goldfall experiment, and based from there like he see something like unexpected results, and based on that he could discover and like finally got that nucleus comes into existence. बाद में और भी चीज़ें डिस्कवर हो गई, like nucleus has proton and neutrons in it. Most of the mass of the atom is constituted is situated in only in nucleus. It has positive charge, and neutrons doesn't have like no charge is there. So proton have positive charge, and complete positive charge is like situated in nucleus. So discovery of nucleus was done by Rutherford. And about nucleus, so it is very small in size. So nucleus, you can write nucleus, you can say discovered by Rutherford. Okay, Rutherford discovered. What about like if we see the size of nucleus, basically it's like very small, is it? तो यहाँ पे जो size of atom है, basically size of atom, तो वो like different atoms have different size, but I can say the size of atom is roughly radius is around 1 angstrom or 10 to the power minus 10 meter. In that case, radius of nucleus is in some Fermi level that comes around 10 to the power minus 15 meter of the order. So you can see, if this is the size of atom, then size of nucleus, it's like very small even compared to the size of atom. Okay, the actual exact for different atoms, the exact size of nucleus, we have relation for that too. So size of nucleus can be even calculated. Here radius is equal to r naught into a raised to power 1 by 3. R naught क्या है? It's some constant that is equal to 1.1 into 10 to the power minus 15 meter. A is atomic you can write mass number of atom. ठीक है, ये भी समझ में आता है कि लाइक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है. सो न्यूक्लियस constitute, or I will say nucleus has neutrons and protons inside, and it is positively charged. Most of the mass of the nucleus is also most of the mass of the atom is also inside the nucleus. और देखो रेडियस आ जाती है अपने पास. Let's have some idea about the density of nucleus. Okay, so न्यूक्लियस के अंदर पहले तो कितने लाइक पार्टिकल्स हैं? Z number of protons and A minus Z number of neutrons. Mass of neutron and proton, they are taken almost same, so I can write total number of nucleons inside the nucleus is A. तो उसका mass अगर मैं लेता हूँ, if mp is mass of proton, तो उस सिचुएशन में mass of nucleus can be expressed as, that is equal to what? M p multiplied by a. This is the mass of nucleus. Volume, radius अपने पास आ गई already, that is equal to r naught into a raised to power 1 by 3 is the mass of radius of nucleus. Density of nucleus can be calculated
न्यूक्लियस, ये क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मास इज A, this is mass of proton divided by r, 4 by 3 pi r cube, and this comes A into mass of proton divided by 4 by 3 into pi into r naught cube multiplied by A, right? A gets cancelled. Substituting the mass of proton r naught is equal to 1.1 into 10 to the power minus 15 and all doing all this calculation, it comes roughly 3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. The important thing here is that density of nucleus is independent of atomic number or mass number. तो मतलब ये समझ लो कि आप लगभग सभी एटम्स का न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, एंड दैट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 17. जस्ट टू हैव क्लियर आइडिया अबाउट इट, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ ग्रेट इट इज़. आपको पता होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 10 to the power 3 kg per meter cube, and this is, you can imagine, just almost 10 to the power 14 times, is it, higher or more greater than the density of water. ठीक है, so it's like highly dense. And एक और चीज़ इसमें, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो ठीक है, न्यूट्रल है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, सही ना, तो प्रोटॉन में क्या हो रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे बहुत सारे. अगर मैं 2 प्रोटॉन की बात कर लेता हूँ तो इनके बीच में चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. और सेपरेशन डेफिनेटली ये रेडियस के बराबर ही होंगे, मतलब लाइक मैक्सिमम जो इनके बीच में सेपरेशन होगा वो क्या हो सकता है, डायमीटर के बराबर. तो रेडियस ही लाइक 10 to the power minus 15 है, तो 2 into 10 to the power, तो मैं इसको रफली जो सेपरेशन है वो 10 to the power minus 15 अगर मीटर ले लेता हूँ, देन कैन जस्ट हैव द न्यूक्लियर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस. ठीक है ना, तो ये कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू K 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 1938 divided by this is a square, तो 10 to the power minus 30. और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इट्स -8 एंड ऑल दैट कम्स अराउंड 230 न्यूटन. मतलब समझ में आ रहा है आपको कि न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन हैं उनके बीच में जो फोर्स है रिपल्सन का, वो कितना, 230 न्यूटन. इट्स लाइक वेरी लार्ज फोर्स, ठीक है ना. तो पॉइंट इज दैट कि अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब प्रोटॉन होंगे, मान चलो और भी प्रोटॉन है, तो इस अगर प्रोटॉन पे बात करता हूँ तो और भी ज़्यादा डेफिनेटली इससे ज़्यादा फोर्स होगा. तो मतलब अब ये है कि जब इतना फोर्स रिपल्सिव है, देन हाउ इट्स स्टिल स्टेबल. ठीक है ना. सो दिस क्वेश्चन आल्सो केम्स इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी ऑलरेडी हैव आंसर फॉर दैट. सो let me just talk about that, how it explained, and before that few terms are there which we require in this basically, so let me just tell you those terms also. Okay, so few terms are related to this here we need it sometime, that is isotopes. Isotopes क्या है, basically nuclei having same number of protons but different number of neutrons. Same protons, same number of proton but different number of neutrons. That is isotopes. Isotones, same number of neutron but different number of proton or atomic number. These are terms you should remember them. And another is isobar. Isobar क्या है, वो atom basically you can say atom having same mass number but
different atomic number. So these are just few terms. You should keep those terms in your mind. Isotopes can same number of proton but different number of neutrons. Isotones can same number of neutron but different number of proton or atomic number. And isobar same mass number but different atomic number. Basically, ठीक है? Okay. Next, I was talking कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जाते हैं बात करते हैं तो दो प्रोटॉन के बीच में भी बहुत स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स है, बट फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है. देन हाउ? तो जो ये फोर्स वाला कंसेप्ट था उसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया था बाय डिफाइनिंग वन कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है ना? ये क्या है बेसिकली? न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट एक्ट ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. इज इट? एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मतलब बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन मास एंड चार्ज. ये मास और चार्ज पर नहीं डिपेंड करता, मतलब इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव. इज इट? इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नीचे. न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है एंड इट्स वेरी शॉर्ट रेंज. Means it act only when the separation between two nuclei or two nucleons or between two particles is of the order of 1 Fermi. Means 10 to the minus 15. जब तक दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इस की रेंज के बराबर होगा और 10 to the minus 15 मीटर के समथिंग अप्रॉक्सीमेट होगा, देन ओनली न्यूक्लियर फोर्स विल एक्ट. जैसे जैसे अगर ये साइज इससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब सेपरेशन दो पार्टिकल के बीच में ज़्यादा हो जाता है, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फोर्स डिसअपियर. ठीक है ना? सो एंड इट्स लाइक वेरी स्ट्रांग. स्ट्रांग मीन्स लाइक इन मैग्नीट्यूड. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी अपन ने देखा कितना था, लाइक बिटवीन टू प्रोटॉन्स इट्स ऑफ द ऑर्डर 230 न्यूटन्स. तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट्स इवन 100 टाइम्स. जस्ट फॉर रफली आइडिया इट्स इवन सो एफ न्यूक्लियर is around 100 times F electrostatic, just to get the rough idea. So it's even stronger. और ये चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, मास पे नहीं डिपेंड करता. न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है, प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, ऑल न्यूक्लियंस के बीच में लगता है बेसिकली. ठीक है? तो इससे क्या किया कि लाइक आइंस्टीन ने जो कंसेप्ट था बेसिकली, जो अभी रिपल्सिव फोर्स वाला प्रॉब्लम आ रहा था, ही एक्सप्लेन दैट क्लियरली. ठीक है? अनदर thing about the stability or like of nucleus is that एक और चीज़ है. न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ठीक है ना? तो उनसे हमें हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मालूम है, और एक जो एक्चुअली में लाइक नेचर में है चीज़ें, तो वहाँ पे हम न्यूट्रॉन एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाता है. एंड द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि दीज टू थिंग्स डजंट मैचेस. ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर ये क्यों नहीं मैच कर रही, कैसे मैच कर रही? एंड देन लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर डिड अबाउट द स्टेबिलिटी एंड द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू लाइक थिंग्स की मास जो एक्चुअल है या ऑब्जर्व्ड है, एंड एस्टिमेटेड मास या लाइक एक्सपेक्टेड मास, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से कैलकुलेट किया जाए, वो मास दोनों डिफरेंट थे. ठीक है ना? सो देन आइंस्टीन का एनर्जी और मास का भी रिलेशन है. सो बाय यूजिंग दैट relation, Einstein's energy mass conservation, we got some idea that how and why actually the mass of observed mass of nucleus is less, and exactly we can calculate how much it will be less. Based on that we can convert that into energy. ठीक है ना? तो पहली बात तो एक आइंस्टीन का एनर्जी मास कंजर्वेशन रिलेशन है. आइंस्टीन्स एनर्जी मास कन्वर्जन, तो एक इसमें होता है AMU, इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स मास ऑफ C612 कार्बन एटम. C612 कार्बन एटम का मास, एक एटम का मास डिवाइडेड बाई 12 विल बी डिफाइंड एज 1 AMU. ठीक है ना? और
इसमें हमें पता है बाई डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और या फिर मैं बोल सकता हूँ एम सी स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर अहम मास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज गिवन बाय दिस इज आइंस्टाइन्स एनर्जी मास कन्वर्जन रिलेशन। तो इसका यूज करके अगर एक ए एम यू मास को कन्वर्ट किया जाता है, इज इट सो एनर्जी इक्विवेलेंट to 1 AMU mass, that is equal to 1 1 AMU multiplied by c square. C is what? Speed of light, 3 into 10 to power, this is 8. मैं डायरेक्टली इसका कन्वर्जन लिख दे रहा हूँ. दिस कम्स अराउंड 931.5 MeV. MeV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. सो 1 AMU in terms of energy is equivalent to 931.5 mega electron volt. Another thing is that observed mass nucleus, there are two masses, ठीक है ना. So one is called observed mass, means mass of nucleus, is it which is like atomic mass minus you can write mass of electrons. So that is basically mass of atom minus z times mass of electron. This is mass of nucleus. और इसको atomic mass हमें पता है, तो this is called observed mass. दूसरा क्या है, कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड मास. तो वो अपन कैलकुलेट करते हैं by considering the number of neutrons and protons inside the nucleus. Okay, so estimated mass क्या है, estimated mass और expected mass. तो हमें किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी है, और हर एक प्रोटॉन का मास पता है, हर एक न्यूट्रॉन का मास पता है. तो अगर एक एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है बेसिकली, दैट इज इक्वल टू z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज, तो अब अगर ये एस्टिमेटेड मास और ऑब्जर्व्ड मास दोनों बराबर है, मीन्स लाइक एवरीथिंग इज ओके. बट द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो बताते हैं, व्हाट इज दोज, दैट m एस्टिमेटेड इज लेस देन इज ग्रेटर देन m ऑब्जर्व्ड. ठीक है. जो एस्टिमेटेड मास है वो ज़्यादा होता है ऑब्जर्व मास से. देयर वी डिफाइन वन टर्म दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्या है, पहली बात तो ऑब्जर्व मास क्या है, एस्टिमेटेड मास क्या है या एक्सपेक्टेड मास क्या है, ये आपको समझ में आनी चाहिए. दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों मासेस बराबर नहीं होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए. तो जो इन दोनों मास का डिफरेंस होता है ना, और उसमें भी क्या होता है, हमेशा ये है एस्टिमेटेड मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑब्जर्व मास. सो द डिफरेंस इन मास, the difference in estimated mass and observed mass is called as mass defect. ठीक है ना. तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम, दिस इज इक्वल टू एम एस्टिमेटेड माइनस एम ऑब्जर्व्ड. ठीक है ना. अब इसको स्टेबिलिटी से कैसे कनेक्ट किया गया, ठीक है ना. तो यहां पे एक बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन की गई. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है, पहली बात तो एस्टिमेटेड मास मतलब कि अगर आप न्यूट्रॉन्स लेके आओ, प्रोटॉन्स लेके आओ, उनको असेंबल करो न्यूक्लियस में, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी मास के इक्विवेलेंट. और जो एक्चुअल मास है वो देखा गया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, देखा ऐसा गया कि जो एनर्जी लाइक का इसकी करस्पॉन्डिंग है वो क्या लेस है. समझ आ रही है. मतलब ये हुआ कि कुछ एनर्जी, जब ऐसे समझो कि जब न्यूक्लियस असेंबल किया जा रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जा रही है, और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है देन इट रीचेस, लाइक अगर सिस्टम की एनर्जी लो है तो वो मोर स्टेबल होता है. हायर इज द एनर्जी, लेसर इज द स्टेबिलिटी. तो मतलब ये होता है कि जब न्यूक्लियस बना उस टाइम पे वो कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया है,
वो कितनी एनर्जी रिलीज किया गया है, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझो, इफ यू वांट टू रियली ब्रेक ईच ऑफ द न्यूक्लियाई, इज इट ईच ऑफ द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो आपको एडिशनली कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। वो कैलकुलेट कैसे करती है, वो यहाँ से अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट अपने पास आ गया, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर बाई आइंस्टीन्स एनर्जी मास कन्वर्जन रिलेशन, तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। आप दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो ये ऐसी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियंस को बाउंडेड है, बांधे हुए है। अगर आपको न्यूक्लियंस को हर एक को तोड़ना है, इंफिनिटी पे भेजना है, दूर दूर करना है, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आ रही चीज़ें, डेफिनेशन आई एम नॉट राइटिंग इट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब क्या, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। सो बाइंडिंग एनर्जी मतलब समझ सकते हैं आप, जितनी एनर्जी जो आपको न्यूक्लियस को या एक न्यूक्लियस को देनी होगी उसके न्यूक्लियस को अलग अलग तोड़ने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हमें कंपैरिजन करना है दो न्यूक्लियस की या कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, तो क्या हम बाइंडिंग एनर्जी से कंपैरिजन कर सकते हैं। द पॉइंट इज नॉट ऑलवेज, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में सही नहीं है, ठीक है। सो वी डिफाइन वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर जो डेल्टा एम है ना, उसको मैं ए एम यू में ले लेता हूँ, ठीक है ना। लेट्स डेल्टा एम इज इक्वल टू एम ए एम यू। तो मुझे ये पता है एक ए एम यू से कितनी एनर्जी निकलती है, 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो m, तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू m इंटू 931.5, और m किस में होगा, दिस इज MeV। m क्या है यहाँ पे, मास डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो वी डिफाइन हियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। दिस इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये क्या रहती है, तो मतलब अगर एक न्यूक्लियस है, इसमें Z प्रोटॉन्स हैं और A माइनस Z क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो जो टोटल एनर्जी जब ये बना तब कितनी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ड्यूरिंग इट्स असेंबली या फॉर्मेशन, वो आप समझ सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक न्यूक्लियस को ऐड करना है या फिर एक न्यूक्लियॉन, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन को इसमें से रिमूव करना है, तब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ रही चीज़ें। तो वो एनर्जी अपन डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पर न्यूक्लियन क्या है, जिसको हम BePn भी बोलते हैं, दिस इज BePn। सो BePn is equal to binding energy divided by number of nucleons. This is called binding energy per nucleon. समझ में आ रही चीजें। तो यहाँ पे अगर किसी एक न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है कंपेयर टू बी न्यूक्लियाई, देन आई कैन से न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस A इज मोर स्टेबल दैट न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर चुका है। तो अगर आपको तोड़ना है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको फिर से देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये रहता है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ A is greater than binding energy per nucleon of atom B, this implies nucleus of atom A is more stable, ठीक है ना। तो अगर आपको न्यूक्लियस स्टेबिलिटी चेक करनी है तो क्या चेक करेंगे, BePn, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी दैट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि अगर A और B आपने दो न्यूक्लियस ले लिए, A न्यूक्लियस एंड B न्यूक्लियस, मैं जैसे मान लेता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, लेट्स से n, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस m है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालोगे तो इसकी कम आ जाएगी, इसकी ज़्यादा आ जाएगी, तो उस टाइम पे चीज़ें
उल्टी हो जाती हैं। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते स्टेबिलिटी के लिए। द बेस्ट वे टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज बाय कंपेयरिंग द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो रिमेंबर दैट एंड दिस इज, ये टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। एस्टिमेटेड मास, ऑब्जर्व मास का मतलब क्या है, मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल से अभी आपको एग्जांपल बताएंगे जो पूरा पहले मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो आपको समझ में आएगा कि लाइक सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। देन यू शुड हैव लाइक दीज रिलेशंस क्लियर कि क्या हैं और कैसे अप्लाई करनी होती हैं, तो आपको बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, see some application of these concepts. So here we have question number 1. If nuclear radius of aluminum 27 is 3.6 Fermi, the approximate nucleus radius of copper 64 in Fermi is. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखा है आपको एल्यूमिनियम 27, इट्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 3.6 फर्मी, और आपको पूछा गया है कॉपर 64 का रेडियस। तो आपको बताना चाहिए रेडियस का मतलब क्या होता है, आर नॉट ए पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू आर नॉट 27 पावर 1/3 इज इक्वल टू 3.6। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, आर, कॉपर इज इक्वल टू आर नॉट 64 पावर 1/3, और इन दोनों को अगर मैं सिंपली डिवाइड कर देता हूँ, लेट मी राइट इट सिंपली स्मॉल आर लाइक आर, तो ये डिवाइड करने से क्या आ जाता है, इट्स लाइक बेसिकली आर नॉट गेट्स कैंसल आउट, 3/r इज इक्वल टू I can write it's basically 3/4 will be equal to 3.6 divided by r, and this implies r copper is coming out to be that is equal to simply 4.8 Fermi. This is answer to the problem. Next question number 2. Okay, so here how does the binding energy no, okay, please, this is just 1 second. The binding energy per nucleon of lithium 37 and helium 24 nuclei are 5.6 MeV and 7.6 MeV respectively. In the nuclear reaction, the value of energy released is. तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है, यू आर गिवन ना lithium 37 plus this is hydrogen 11, it's getting converted into helium 24 plus helium 24 plus Q। तो ये एनर्जी बेसिकली लाइक अपन इधर की टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल लेते हैं, इधर की निकाल लेते हैं, हियर इट इज हायर, तो मतलब कि ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो Q वैल्यू अपन लिख सकते हैं बेसिकली, Q वैल्यू इज इक्वल टू BePn ऑफ helium multiplied by how much nuclei, like here 8 minus BePn of lithium multiplied by 7। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, एक्चुअली में कम रहता है, तो इसलिए आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 multiplied by 7.06 minus 7 multiplied by 5.6, इसको कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी रफली 17.28 दैट इज इक्वल टू 17.3 MeV। सो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड दैट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो ये आप देख सकते हैं लाइक ओके, द मास ऑफ lithium 37 nucleus is 0.042 uranium, less than the sum of the masses of all its nucleons. The binding energy per nucleon of lithium nucleus is। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 should be visible to you। तो यहाँ पे ये lithium 37 अगर इसको असेंबल किया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो मास और इसके कंस्टिट्यूएंट का मास, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट कम्स आउट टू बी, मींस डायरेक्टली आपको डेल्टा एम मास डिफेक्ट दे रखा है 0.042 और 0. यस एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी देखो एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, बाइंडिंग एनर्जी में लिखता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0.042 मल्टीप्लाइड बाई 931 रफली ले लेते हैं, ठीक है। पूछा गया आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट विल बी इक्वल टू 0.042 multiplied by 931 divided by 7,
0 6 × 9 31 और ये सॉल्व होकर के बेसिकली आपको आ जाता है दिस कम्स आउट टू बी रफली 5.6 MeV। तो ये हो जाता है प्रॉब्लम आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4, the nuclei carbon nuclei C613 and nitrogen 714 can be described as isotones, isobar, isotopes of carbon, isotopes of nitrogen। तो देखो अब आपको यहाँ पे कैसे चेक करना है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आइसोबार क्या है, सेम मास नंबर, तो मास नंबर डेफिनेटली सेम नहीं है तो नॉट आइसोबार। आइसोटोप्स क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब बेसिकली एटॉमिक नंबर सेम, दैट इज आल्सो नॉट, आइसोटॉप्स भी नहीं है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7, number of neutrons 7, so yes, and different atomic numbers, these can be described as isotones। ठीक है ना। सो बेसिक आपको डेफिनेशन चीजें ये पता होनी चाहिए, देन यू विल बी लाइक आंसरिंग द क्वेश्चंस। Okay, so next let's see the variation of binding energy per nucleon, variation of BEPN। इसमें क्या है कि लाइक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट लाइक सभी एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर और उनका प्लॉट देखते हैं, द वेरिएशन। सो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज BEPN वर्सेस एटॉमिक मास नंबर, इट लुक्स लाइक समथिंग दिस। Means initially it increases up to this is 56 for iron, 26. The binding energy per nucleon maximum is 8.8 MeV. Then it started decreasing, and beyond like around 200, the binding energy decreases significantly. मतलब क्या हुआ, ए न्यूक्लियर तो मतलब छोटे से ही है, ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ये क्या है, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर भी लाइक हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, बट दे कांट ब्रेक एक्चुअली, है ना। तो ये न्यूक्लियर फिर जैसे जैसे बन जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी, भाई आपको ये ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो सबसे स्टेबल है, तो ये स्टेबल न्यूक्लियर, ये भी स्टेबल न्यूक्लियर। जैसे थोड़े से मतलब अगर एक हैवी एटॉमिक वेट में जाएं तो उस सिचुएशन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर भी कम हो जा रही है। दूसरा फैक्टर क्या रहता है इनका, यहाँ पे जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, वो भी यहाँ पे क्या होगा, लाइक एटॉमिक वेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा तो एक जो हर एक न्यूक्लियन के पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाता है। सो ओवरऑल द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल as we go beyond certain like around 200 atomic weight। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे लाइक राइट अनस्टेबल न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो अब ये क्या करेंगे, जब अनस्टेबल मींस दे कैन नॉट बी स्टेबल, तो ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं, दे ब्रेक डाउन बेसिकली इनटू स्टेबल न्यूक्लियर, एंड इन दैट प्रोसेस बेसिकली दे रेडिएट, दे आर लाइक रिलीजेस सम रेडिएशंस लाइक अल्फा बीटा गामा। तो वो क्या है थोड़ा उनको समझते हैं। और एक और चीज यहाँ पे, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। This BEPN first increases with atomic weight, reaches maximum, and then decreases with atomic weight। ठीक है ना। So this is the variation of binding energy per nucleon। एक और चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा और इसको न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को कनेक्ट किया जाए with the number of neutrons and number of protons, or so let's say this is the n is equal to Z1। तो ऐसा जो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियर सब हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके लिए जब हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखा है लाइक सम न्यूक्लियर्स आर लाइंग इन दिस रीजन और ऑलमोस्ट इन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बैंड। मतलब कि जो न्यूक्लियर इस बैंड में लाई कर रहे हैं, जिनका n/z रेशियो बराबर लाइक
ये तो 1 है, बट इससे लाइक यहाँ पे ये 1.6 समथिंग हो जाता है एन बाई जेड रेशियो। तो ये जो बेल्ट है इस रीजन में जो लाई करती है दे आर स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर किसी न्यूक्लियर कोई न्यूक्लियर यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर, सो इट विल आल्सो ट्राई टू एंटर इन दिस रीजन। ऐसे ही क्या होता है, एक न्यूक्लियर ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर लाई कर रहा हो, जैसे दिस इज ए, दिस इज बी, तो वो भी क्या करता है, स्टेबिलिटी बेल्ट में एंटर करने की कोशिश करता है। तो ये कैसे एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर बी निकले z इज हायर, तो ये z को कम करने के लिए क्या करता है, एक प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देता है न्यूट्रॉन में। यहाँ पे ए के लिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हायर, तो ये एक न्यूट्रॉन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 प्रोसेसेस आती है। तो यहाँ पर क्या जो ऑब्जर्व चीजें हैं वो क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है देन इट रिलीजेस वन बीटा नेगेटिव, और वी कॉल इट बीटा नेगेटिव डिके। Similarly, when a proton is converted into neutron, then it releases one beta positive particle, and this is also called beta positive decay. और unstable nuclei हैं वो एक और तरीके से decay होते हैं, and that is alpha decay. तो overall point is that some unstable nuclei they cannot be stable, decay into stable nuclei by release of different radiations, and this process is called radioactivity. समझ में आई चीजें, और you can see the nucleus which is unstable is said to be radioactive nucleus. ठीक है, so radioactivity, तो radioactivity क्या है, the process of decaying of heavy unstable nuclei into lighter stable nuclei. ठीक है ना, process of decay of heavy unstable nuclei into lighter stable nuclei by release of alpha, beta and gamma radiations is called as radioactivity. ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है जो हैवी न्यूक्लियाई है और अनस्टेबल है वो नॉर्मली 3 तरह के रेडिएशंस, यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से, बीटा में भी फर्क 2 हो जाते हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कब बीटा पॉजिटिव है, कब लाइक बीटा पॉजिटिव, कब बीटा नेगेटिव। जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, when n by z ratio is more than the stability band, neutron will be converted into proton. This decay process we will call beta negative, because in this process अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। ऐसे ही अगर एक B जिसका z n by z you can say is less than the stability nuclei stability band, तो वो क्या करता है, यहाँ पे z कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। In this process it releases one beta positive particle, this is called beta positive decay. तो अभी ये समझ में आ गया हमारे पास कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, वो डिके होता है, वो किस तरह से, कौन कौन से 3 रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। सो अल्फा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है, और इनका क्या है, इनकी एनर्जी वगैरह कितनी निकलती, ये सब अपन को समझने का है। सो लेट्स टॉक अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा डिके। ओके, सो रेडियोएक्टिविटी अपन को क्लियर हो गया, मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करते हैं, डिके करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल। तो लेट मी टेल यू अबाउट दीस पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली आप समझ लो कि हीलियम 2 प्लस पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का क्या है, मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो हो जाता है मास ऑफ helium 2 minus 2 times mass of electron, that comes out to be 4 times mass of proton. So charge on alpha particle, it's basically plus 2 charge of electron. ऐसे बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, इसका मास होता है बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज on this is plus electron charge. Similarly, beta negative particle, ये रहता है mass of beta negative particle is mass of electron and charge is equal to minus e, means electron के charge के बराबर। तो ये तो हो जाते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल।
और यहाँ पे लाइक अल्फा डिके और रेडियोएक्टिव डिके और डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। तो आपको ये तो ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से पार्टिकल डिके करेंगे, दैट विल वेरी हैवी पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, लेट्स से x इज आवर लाइक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर, atomic number Z, mass number A, when it is decaying through alpha decay process, getting converted into some Y, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एक हीलियम 2-4 एटम निकल रहा है, लाइक पार्टिकल जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। दिस इज अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे +2 चार्ज होगा, आप इक्वेशन लिख सकते हो 4 and +2। दिस इज कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। एंड तो चार यहां से क्या होगा, मास नंबर घट गया 4 से, और एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन यहां पर है, तो बेसिकली Z-2। दिस इज योर अल्फा डीके प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियर डीके होता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। नॉर्मली क्या होता है, दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, और जो एनर्जी निकलती है ना, दिस एनर्जी Q, जिसको बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और you can write the energy released in this decay process is termed as Q value of the reaction. So Q value of reaction on alpha decay, you can write energy released in alpha decay is called as Q value of reaction, ठीक है। and this energy comes out and in the form of, कैसे काम बाहर आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर Y एंड अल्फा पार्टिकल, Y और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। तो ये नहीं बताते हैं लाइक कितना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मास इसका My ले लेता हूँ, इसका M अल्फा हो गया, दिस इज मास X, ठीक है। तो बाय कंसिडरेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं ये बोल सकता हूँ Py should be equal to P alpha, and this implies if let's say Ty kinetic energy of Y and T alpha is the kinetic energy of alpha particle, in that situation I can get the exactly the Q value energy total निकल रही है, तो अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी कैरी करेगा और Y डॉट न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं वो कितनी एनर्जी कैरी करेगा। By using this relation I can write this is equal to 2 m alpha into T alpha should be equal to 2 my into Ty, and this implies T alpha is equal to my by m alpha into Ty, और टोटल एनर्जी अगर है T alpha plus Ty is equal to what, Q value, ठीक है। T alpha की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके आ जाता है Ty is equal to m alpha divided by my plus m alpha multiplied by Q value of the reaction. Similarly, T alpha is equal to my divided by my plus m alpha multiplied by Q. ठीक है। सो दिस इज द, ये रिलेशन आपको याद रखने होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे तो टोटल मास आ ही रहा है, मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ अल्फा, इधर Q वैल्यू है टोटल रिएक्शन की, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y डॉट न्यूक्लियर इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा पार्टिकल, मतलब जो Y के अलावा दूसरे पार्टिकल को अल्फा इधर कर रहा है ना, उससे प्रोपोर्शनल है। तो दैट्स ऑल, लाइक इजीली यू कैन रिमेंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये Q वैल्यू I है वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो Q वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं बाय लाइक कैलकुलेटिंग द मास डिफेक्ट, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर बाय एनर्जी, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास कन्वर्जन। तो वहां से अपने पास Q वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू, तो मैं आपको इसके लिए बता दे रहा हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी के लिए आपको सीधा रिजल्ट में लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली जो न्यूक्लियस में मास है, सो लेट मी फर्स्ट गेट डेल्टा m मास वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ x न्यूक्लियर माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसका कितना हो गया टोटल मास माइनस जेड टाइम, तो ये क्या हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज एम वाई माइनस इसमें कितने प्रोटॉन होंगे जेड माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे कितने हैं मास ऑफ हीलियम माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस होल राइट। तो ये डेल्टा एम आ गया, तो क्यू वैल्यू क्या आ गई, क्यू वैल्यू इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिख देता हूं तो ये देखो कितना आ जाएगा एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस ये इधर माइनस तो ये प्लस जेड माइनस 2 दिस इज एम ई माइनस एम एच ई माइनस माइनस ये प्लस 2 एम ई इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जेड एम ई और यहां से जेड एम ई और माइनस 2 ये प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपने पास आ रहा है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज कमिंग आउट टू बी एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई इंटू सी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो देखो सीधा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सी है, बट यू शुड रिमेंबर दीज रिलेशंस एक्चुअली, ये आपको याद होने चाहिए। और ये जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी एनर्जी कौन कैरी करेगा, तो दैट इज दिस यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है ये तो क्या होगा टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस पार्टिकल, या फिर आप बोल सकते हो कि वाई की जो एनर्जी है ना वो अल्फा के मास के प्रोपोर्शनल है। और डेफिनेटली लाइक इन दोनों पार्टिकल में अगर हम चेक करते हैं तो अल्फा का मास कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि energy carried by the daughter nuclei is actually less than, so most you can write here most of the energy is carried by what alpha particle, so most of you can write either more part of the energy, is it most of energy released is carried by alpha particle, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि alpha particle will carry more energy compared to daughter nuclei. So this is all about your alpha decay. हाँ, एक और चीज इसमें ये रहती है कि अगर यहाँ से यही रिएक्शन को अगर मैं बात करता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगी वो क्या होगी कांस्टेंट आएगी, लाइक इसका ये मास ऑफ अल्फा इट विल बी लाइक 4, इसका मास m ले लेते हैं तो ये लाइक m डिवाइडेड बाय m + 4, तो इसकी एनर्जी क्या आती है कांस्टेंट आती है। मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन में हमेशा जितने भी अल्फा पार्टिकल निकले उनकी सबकी एनर्जी सेम आनी चाहिए, और उसको एनर्जी सेम आनी चाहिए मतलब उसकी स्पीड सेम आनी चाहिए। इसको चेक करने का तरीका रहता है कि हम क्या करते हैं इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से अंदर की तरफ है अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है v, सो v क्रॉस v, सो इट विल बी लाइक थोड़ा इधर से रिलीज कर देता हूँ, इट विल बी लाइक मूविंग दिस वे, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये सेम रेडियस का सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब तो क्या है दैट्स करेक्ट, जो अपन ने माना था कि हर एक अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए उतनी आ रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऐसे कहते हैं कि एक ही सर्कल डिस्क्राइब नहीं करते, दे डिस्क्राइब मेनी सर्कल्स लाइक दिस। तो दिस इज अनदर स्ट्रेंथ थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट तो क्लियर है कि सभी अल्फा पार्टिकल की सेम स्पीड नहीं है, मतलब सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब ये अलग अलग क्यों है, ठीक है ना, इसका आंसर ये रहता है कि एक्चुअली में जो यहाँ पे वाई पार्टिकल जनरेट हो रहा है दैट इज नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इट आल्सो लाइक जो एनर्जी क्यों रिलीज हो रही थी उसका कुछ पार्ट एनर्जी ये स्टोर कर लेता है बाय एक्साइटिंग इटसेल्फ, ठीक है ना। तो वो एनर्जी वो उतनी एनर्जी लाइक जितनी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है अलग अलग स्टेट्स में जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे ये एनर्जी बदल रही थी। तो यहाँ से समझ में आता है कि जब अल्फा डिके हो रहा है तो दिस न्यूक्लियाई इज एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाई को हम वाई स्टार से डिनोट करते हैं। ये जब कन्वर्ट होता है वाई प्लस रेडिएटिव 1 गामा रेडिएशन, तो ऐसे समझ लो कि हर एक अल्फा रेडिएशन के बाद एक गामा तो निकलना मस्ट है, ठीक है ना, और एटलीस्ट अपन ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि एक गामा पार्टिकल निकलता है।
So this is about your alpha decay, Q value and all that. Let me tell you more about beta negative and beta positive decay also. Okay, so before talking about gamma radiation and like beta negative and positive, let's see some problem. So you can see it there. How does the binding energy per nucleon vary with increase in the number of nucleons? So decreases continuously with the mass number. First decreases, then increases with increase in mass number. First increases, then decreases with the increase in mass number. Increases continuously mass number. So ये अभी आपको like समझ पाना चाहिए the graph or something like this. यहाँ पे क्या हो रहा है? First increases and then decreases. So the correct option matches with here is option C. Question number like is it? So you can see like it's also straightforward application. Next question here. Alpha particle consists of. So ये भी आपको like properties of alpha से पूछ लिया गया है. This is from NEET 2019. Very simple question. 2 proton only, 2 proton, 2 neutron only, 2 electron, 2 proton, 2 neutron, 2 electron, 4 proton only. Definitely. So B is the right option. 2 proton and 2 neutron. So answer to the question is B. And next question here, number 7, 6, 5, 7. Question number. So that nucleus of uranium decay at rest into nuclei of thorium and helium. Helium का मतलब हो गया अल्फा पार्टिकल. तो मतलब this is an alpha decay process. You can see the question there. तो अब आपको पूछा गया then the correct statement. Helium nuclei has more momentum than the thorium nuclei. अभी आपको नहीं देखा होगा कि अल्फा डिके में क्या रहता है, मोमेंटम का रिलेशन. वाइट क्या डॉट न्यूक्लियस में क्या है, थोरियम. अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम. सो इट्स लाइक अल्फा डिके. तो ये बोल रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द थोरियम. आई थिंक इट्स नॉट राइट. यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट. हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम न्यूक्लियस. व्हाट डू यू से अबाउट इट? अभी बताए थे आपको. हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस. The helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus. So the correct option is here C. Helium nucleus has more kinetic energy than that of thorium nucleus. So the answer for question number 7 is matching with C, that helium nucleus has more kinetic energy than that of thorium nucleus.